یہ قصہ ہے شیطان کے دردناک انجام کا۔ ایک لمحہ ایسا آئے گا جب اس کا سامنا ملک الموت سے ہوگا۔ وہ زمین پر بھاگے گا، آسمانوں کی وسعتوں میں دوڑے گا، تاریکیوں میں چھپنے کی کوشش کرے گا، مگر تقدیر نے اسے گھسیٹ کر اس مقام تک پہنچا دیا جس سے وہ ساری زندگی بچتا رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس، اس ہستی کی مزار پر جسے سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا تھا، اور وہیں اس کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اس انجام تک کیسے پہنچے گا؟ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیوں گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی شیطان ان کی قبر کی تلاش میں کیوں سرگرداں رہا۔ ناظرین، یہ کوئی افسانہ نہیں، بلکہ احادیث اور معتبر اسلامی روایات کی روشنی میں شیطان کے انجام کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کس ملک سے دیکھ رہے ہیں، اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ناظرین، انسان کی تخلیق سے بہت پہلے زمین اپنی موجودہ صورت میں نہیں تھی۔ خشکی تھی، پہاڑ تھے، سمندر تھے، مگر نظام اور سکون ناپید تھا، اور وہ عظیم امانت جسے انسان کے سپرد کیا جانا تھا ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ زمین خالی نہیں تھی، بلکہ خون ریزی، آگ اور سرکشی سے بھری ہوئی تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زمین کو سنوارنے کا ارادہ فرمایا، اس سے پہلے بھی وہاں مخلوقات آباد تھیں۔ ان میں سب سے قدیم مخلوق جنات کی تھی۔ جنات آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے، وہی مخلوق جسے آج ہم جن کہتے ہیں۔ شکل و صورت میں وہ انسانوں سے مختلف تھے، مگر عقل، ارادہ اور اختیار میں انہیں بھی آزمائش دی گئی تھی۔ ان پر بھی احکام نازل ہوئے، انہیں بھی پرکھا گیا، اور ان کے اعمال کا حساب بھی مقرر تھا۔ جنات کی نسلیں زمین کے کونے کونے تک پھیل گئیں۔ بلند پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر سمندروں کی تہوں تک ان کا بسیرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بندگی، توحید اور سیدھے راستے کی طرف بلایا۔ ان میں سے ایک جن، جسے بعض روایات میں طاؤس کہا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس دعوت پر لبیک کہنے والے تھے۔ انہوں نے ایمان قبول کیا اور عبادت اختیار کی، مگر اکثریت نے انکار اور بغاوت کا راستہ چنا۔ بعض روایات جنہیں ابن عربی سے منسوب کیا جاتا ہے، بیان کرتی ہیں کہ ہزاروں برس تک جنات مختلف خطوں میں عبادت کرتے رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ تکبر نے ان کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ رفتہ رفتہ فساد پھیل گیا، خون بہنے لگا، طاقتور کمزوروں کو کچلنے لگے، اور آگ سے پیدا ہونے والی سختی نے رحم و کرم کو دبا دیا۔ غرور بڑھتا گیا، اطاعت کم ہوتی گئی۔ زمین جو ذکر الہی سے آباد ہونی چاہیے تھی، بغاوت کا میدان بن گئی۔ روایات کے مطابق جنات نے آپس میں ہی نہیں، بلکہ زمین کے نظم و توازن کے خلاف بھی بغاوت کی۔ پہاڑوں کو ہلایا گیا، توازن بگڑا، اور تخلیق کی ہم آہنگی متاثر ہوئی۔ اسی لمحے قدرت کا فیصلہ نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کا ایک لشکر زمین کی طرف بھیجا، مگر یہ کوئی معمولی مہم نہ تھی، یہ تطہیر تھی، یہ احتساب تھا۔ اس مہم کی قیادت ایک ایسی ہستی کے سپرد تھی جس کا نام اس وقت سب پر ظاہر نہ تھا، مگر آسمانوں میں اس کا مقام بلند تھا، عزازیل۔ وہی عزازیل جو بعد میں ابلیس اور پھر شیطان کے نام سے پہچانا گیا۔ اس زمانے میں ابلیس کا ذکر فرشتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، کیونکہ اس نے طویل عرصے تک اطاعت اور عبادت میں زندگی گزاری تھی۔ وہ سجدہ گزار تھا، علم میں ممتاز تھا، اور اس کام میں وہ کامیاب رہا۔ فرشتوں کے ہمراہ اس نے باغی جنات کا مقابلہ کیا، انہیں شکست دی۔ کچھ کو زمین کے پوشیدہ حصوں میں دھکیل دیا گیا، کچھ سمندروں کی گہرائیوں میں جا چھپے، اور کچھ دور دراز علاقوں میں منتشر کر دیے گئے۔ یوں زمین وقتی طور پر پرسکون ہو گئی، خون ریزی تھم گئی، فساد دب گیا، نظام بحال ہو گیا۔ لیکن اصل خطرہ یہیں سے شروع ہوا، کیونکہ اس کامیابی نے ابلیس کے دل میں ایک خاموش بیج بو دیا۔ ایسا بیج جسے کسی نے نہ دیکھا، مگر اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ تکبر کا بیج۔ ابلیس خود کو محض ایک فرما بردار بندہ نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے دل میں خیالات ابھرنے لگے، اگرچہ زبان پر نہ آئے تھے، مگر جڑ پکڑ رہے تھے۔ میں نے کامیابی حاصل کی، میں نے زمین کو پاک کیا، میں برتر ہوں۔ ظاہری اطاعت باقی تھی، مگر اخلاص میں دراڑ پڑ چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی تخلیق کوئی اتفاقی واقعہ نہ تھی۔ انسان اس بگڑے ہوئے توازن کا جواب بن کر آنے والا تھا۔
جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک نئے خلیفہ کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو وہاں فساد کرے اور خون بہائے؟ یہ سوال جنات کے ماضی کی یاد سے پیدا ہوا تھا، کیونکہ زمین پہلے بھی یہ منظر دیکھ چکی تھی اور بھاری قیمت ادا کر چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس جواب میں انسان کے راز بھی پوشیدہ تھے اور ابلیس کے لیے ایک چھپا ہوا حساب بھی، کیونکہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی آزمائش کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابلیس کے دل میں پلنے والا غرور ابھی ظاہر نہ ہوا تھا، مگر وہ ایسے راستے پر چل نکلا تھا جہاں واپسی ممکن نہ تھی۔ جنات کی بغاوت کا باب بند ہو چکا تھا، لیکن ان کی چھوڑی ہوئی میراث، سرکشی، تکبر اور برتری کا دعویٰ ایک اور دل میں زندہ تھا، اور بہت جلد یہی تکبر پہلی بار کھل کر بولنے والا تھا۔ زمین کو سنوارا جانا تھا، مٹی کو شکل دی جانی تھی، روح پھونکی جانی تھی، اور پھر سجدے کا حکم صادر ہونا تھا۔ مگر اس لمحے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ابلیس کون تھا اور وہ اس مقام تک کیسے پہنچا، کیونکہ یہ قصہ صرف شیطان کی کہانی نہیں بلکہ انسانیت کی تاریخ بھی ہے۔ ابلیس کی داستان اچانک شروع ہونے والی بغاوت کی کہانی نہیں، جیسا کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں۔ ابتدا میں وہ نہ مردود تھا، نہ ملعون، نہ تاریکی کی علامت، بلکہ ایک طویل عرصے تک وہ اطاعت اور عبادت کی مثال سمجھا جاتا تھا۔ آسمانوں میں اس کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق ابلیس جنات میں سے تھا، مگر عام جن نہیں تھا۔ علم، عبادت اور منظم بندگی نے اسے ممتاز بنا دیا تھا۔ بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ اس نے ہزاروں برس عبادت میں گزارے۔ یہ معمولی عبادت نہ تھی، بلکہ طویل سجدے، مسلسل ذکر اور زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح سے بھرپور زمانے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے کوئی جگہ ایسی نہ چھوڑی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ساتوں آسمانوں کی منازل طے کیں اور ہر درجے میں الگ عبادت کی، مگر اسی عبادت کے اندر ایک پوشیدہ خرابی پل رہی تھی۔ عبادت موجود تھی، مگر عاجزی کمزور پڑ رہی تھی۔ اطاعت تھی، مگر خود پسندی خاموشی سے بڑھ رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ صرف عبادت گزار نہ رہا، بلکہ سکھانے والا بن گیا۔ روایات میں ہے کہ بعض فرشتوں نے بھی اس سے آداب عبادت سیکھے۔ اس کے علم کی تعریف ہوتی، اس کی دانائی کا احترام کیا جاتا، اور یہی وہ نازک موڑ تھا جہاں ایک خطرناک مگر غیر محسوس حد پار ہو گئی۔ دل کی گہرائی میں ایک خیال نے جنم لیا، میں عام نہیں ہوں، میرا مقام جدا ہے، میں اس کا مستحق ہوں۔ ابھی بغاوت ظاہر نہ ہوئی تھی، انکار سامنے نہ آیا تھا، مگر دل کا رخ بدل چکا تھا۔ عبادت آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ اپنے مقام کے احساس کے لیے ہونے لگی، اور یہ ایسا فساد تھا جو باہر سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے یہ خرابی فوراً ظاہر نہ کی گئی، کیونکہ ابلیس کے باطن کا راز ایک عظیم آزمائش کے ذریعے کھلنا تھا۔ ایسی آزمائش جو 20,000 سال کی عبادت کو مانی بھی دے سکتی تھی اور ایک لمحے میں بے قیمت بھی بنا سکتی تھی۔ فرشتوں کے درمیان مقام پانے کے بعد ابلیس نے خود کو خاص سمجھنا شروع کر دیا۔ فرق یہ تھا کہ فرشتے بلا سوال اطاعت کرتے تھے، جبکہ ابلیس اطاعت کے ساتھ تقابل کرنے لگا، اور یہی تقابل وہ پہلی کنجی تھی جس نے شیطانیت کا دروازہ کھولا۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، سجدے کا حکم نہیں آیا تھا، مگر ابلیس کا ذہن تیار ہو چکا تھا۔ برتری کا تصور اس کے اندر خاموشی سے جڑ پکڑ رہا تھا۔ آگ سے پیدا ہونے کا احساس قوت اسے اندر ہی اندر ڈھال رہا تھا۔ وہ مٹی کی حقیقت کو جانتا بھی تو حقارت سے دیکھتا۔ ابلیس خود کو محض عبادت گزار بندہ نہیں بلکہ ایک ایسی ہستی سمجھنے لگا تھا جو بلند تر مقام کی حقدار ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ حق جتانے لگے تو وہ بندہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق کا ارادہ فرمایا تاکہ دل کے اندر چھپی حقیقت آشکار ہو جائے۔ یہ تخلیق محض ایک نئی ہستی کا ظہور نہ تھی بلکہ ابلیس کے باطن کا آئینہ تھی۔ حضرت 20,000 برس کی عبادت ایک سوال کے سامنے کھڑی تھی، کیا اطاعت صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا اس لیے کہ تو خود کو برتر سمجھتا ہے؟ ابھی جواب زبان پر نہ آیا تھا، مگر دل فیصلہ کر چکا تھا، اور بہت جلد زمین کی خاموشی ٹوٹنے والی تھی، تشکیل پانے لگا، اور ابلیس کے باطن کا مرض سب کے سامنے آنے والا تھا۔ ایک دن فرشتے جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو پھر ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے،
जैसे इससे पहले जिन्नात ने किया, जबकि हम तेरी तस्बीह और तकदीस करते रहते हैं। ये एतराज न था बल्कि सवाल था। हैरत थी कि जिन्नात के बाद फिर एक नई मखलूक क्यों? जवाब मुख्तसर मगर गहरा था। मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर हुक्म हुआ कि जमीन के हर हिस्से से मिट्टी ली जाए। सुर्ख, स्याह, सफेद, जर्द, हर रंग और हर साख्त की मिट्टी जमा की गई और उसी से एक जिस्म तैयार किया गया। इंसान का जिस्म। वो बेजान था, एक जगह खड़ा। 40 दिन तक उसी हालत में रहा। फरिश्ते उसे देखते, मुतजस्सिस थे, मगर हाथ ना लगाते। अज़ाज़ील ने भी उसे देखा और उसी लम्हे उसके अंदर मौजूद तकब्बुर का जहर फैलने लगा। वो आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के करीब आया, उसके गिर्द चक्कर लगाया, मुंह के रास्ते दाखिल हुआ और नाक से निकल आया। कान से अंदर जाकर आंखों से झांका। अंदर खला था, सिर्फ मिट्टी। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, तू कुछ भी नहीं, महज मिट्टी है। मैं आग से हूं। मैंने फरिश्तों को सिखाया। मैं 7 आसमानों तक पहुंचा, जन्नत में दाखिल हुआ। जमीन पर मेरा इख्तियार था। फिर उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर मुझे तुझ पर मुसल्लत किया गया तो तू बच न सकेगा। रातें गुजरती रहीं और हर रात वो आता, आदम के गिर्द घूमता, हिकारत से देखता, धमकियां देता। अभी रूह न फूंकी गई थी, न हरकत थी, न कलाम, मगर इब्लीस के बातिन में तूफान उग चुका था, क्योंकि पहली बार वो ऐसी मखलूक के सामने खड़ा था जिसमें वो खुद मरकज न था। इस इंतजार के दौरान इब्लीस का जहन मुसलसल हरकत में रहा। वो मवाजना करता रहा, आग के बारे में सोचता, मिट्टी के बारे में गौर करता। उसने खुद ही नतीजा निकाल लिया कि आग ऊपर उठती है। फरिश्ते ऐसे न थे। वो इंतजार करते, सवाल ना करते, मवाजना ना करते। मगर इब्लीस ने अपना पैमाना खुद बना लिया था। इसीलिए रूह फूंके जाने से पहले का जमाना निहायत हस्सास था, क्योंकि बगावत उसके अंदर पुख्ता हो चुकी थी, अगरचे जाहिर ना हुई थी। वापसी का रास्ता अब बाकी ना रहा था। फिर वो लम्हा आया जिसे तकदीर ने मुकर्रर कर रखा था। अल्लाह ताला ने रूह फूंकी। आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। आंखें खुली, जिंदगी ने आगाज किया। और वो हुक्म जो आसमानों में गूंजने वाला था, अब टलने वाला ना था। मगर इब्लीस के लिए यह सजदे का लम्हा ना था, बल्कि जुदाई का लम्हा था, क्योंकि जो हकारत उसने बेजान जिस्म को देखकर दिल में बसाई थी, वो अब जिंदगी मिलने के बाद खुली बगावत में बदलने वाली थी। और एक ही हुक्म हजारों बरस की इबादत को एक जुमले में मिटा देने वाला था। जब रूह दाखिल की गई तो आदम अलैहिस्सलाम महज एक पैकर ना रहे, उन्हें जिंदगी दी गई, इल्म अता किया गया, अस्मा सिखाए गए। फिर हुक्म सादिर हुआ। यह हुक्म किसी मखलूक की इबादत के लिए ना था, बल्कि बंदगी की हद मुकर्रर करने के लिए था। आदम को सजदा करो। फरिश्तों ने न ताखीर की, न सवाल किया, न तकाबुल किया। हुक्म सुना और फौरन सजदे में गिर गए। उनके लिए मेयार वाज़े था, जहां हुक्म हो वहां इताअत होती है। मगर सजदा करने वालों में एक खड़ा रहा, इब्लीस। ये न भूल थी, न लम्हाती तजब्जुब, बल्कि बरसों से छुपा तकब्बुर उस घड़ी जबान बन गया। अल्लाह ताला ने पूछा, जब मैंने हुक्म दिया तो तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा ना करे? यह सवाल इल्म हासिल करने के लिए ना था, बल्कि हकीकत जाहिर करने के लिए था। इब्लीस ने जवाब दिया, और उसका जवाब तारीख का पहला बाकायदा फलसफियाना दावा था। उसने अपनी अक्ल को वही पर मुकद्दम किया और कहा, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से बनाया। इस जुमले के साथ मीजान बदल गया। अब अल्लाह का हुक्म फैसला कुन ना रहा, बल्कि इब्लीस का मवाजना मेयार बन गया। आग और मिट्टी का तकाबुल महज माद्दी फर्क ना था, बल्कि मैं बरतर हूं के ख्याल का इजहार था। इब्लीस ने सिर्फ सजदा से इनकार नहीं किया, बल्कि बंदगी को रद्द कर दिया, और उसकी कीमत सख्त थी। फरमाया गया, निकल जा यहां से, तू रांदा दरगाह है, तुझ पर मेरी लानत है। इब्लीस फरिश्तों की सफ से खारिज हो गया। मगर कहानी यहां खत्म ना हुई। उसने हलाकत नहीं मांगी, बल्कि मोहलत तलब की। मुझे कयामत के दिन तक मोहलत दे दे। ये मोहलत दी गई, क्योंकि आजमाइश जारी रहनी थी, सिर्फ इब्लीस के लिए नहीं, बल्कि इंसान के लिए भी। उसने ऐलान किया कि वो इंसान पर बराह रास्त हमला नहीं करेगा।
बल्कि अतराफ से वार करेगा। खुली बगावत से नहीं, बल्कि खामोश इनहिराफ से। सिर्फ गुनाह से नहीं, बल्कि उज़ुर तराशी से। वाज़े मुमानियत से नहीं, बल्कि जवाज घड़कर। और पहला मैदान पहले ही तय हो चुका था, जन्नत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में थे। सिर्फ एक ममानियत थी, और वो साफ अल्फाज में बयान कर दी गई थी। मगर इब्लीस ने कभी भी बराह रास्त हराम काम की दावत नहीं दी। उसने हमेशा की तरह हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। रिवायात में आता है कि वो सांप के जरिए जन्नत में दाखिल हुआ, खुले दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि खैरखा बनकर, मुशीर बनकर, हमदर्द बनकर। उसने कसम खाई, मैं तुम्हारा सच्चा खैरखा हूं। जब उसने ममनुआ दरख्त का जिक्र किया तो उसे खतरा नहीं, बल्कि मौका बनाकर पेश किया। उसने कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जिंदा ना रहो। यह हकीकत के बरक्स बात थी, मगर दिलकश थी, क्योंकि इब्लीस इंसान की कमजोरी जानता था, हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश और बरतरी की तमन्ना। फिर वो लम्हा आया जब आदम और हव्वा ने उस दरख्त से खा लिया। उस घड़ी सिर्फ एक हुक्म न टूटा, बल्कि एक नई कैफियत जाहिर हुई। अरियानी का शऊर पैदा हुआ, हया का एहसास जागा, अपने आप को ढांपने की फिक्र पैदा हुई, क्योंकि गुनाह पहले इंसान के बातिन को बेनकाब करता है और फिर जाहिर को। जन्नत की फजा बदल गई। पहला जाल बीत चुका था, पहली लग़ज़िश हो चुकी थी। मगर जिसे इब्लीस फतह समझ रहा था, वो दरअसल इंसान और शैतान के दरमियान तवील मार्के की इब्तिदा थी। क्योंकि इंसान के लिए तौबा का दरवाजा खुला था, इब्लीस के लिए नहीं। सजदे से इनकार के साथ जो जुदाई शुरू हुई थी, वो जन्नत की पहली लग़ज़िश से और गहरी हो गई, और जमीन पर एक तवील, तारीक और सब्र आज़मा जंग का आगाज हो गया। इब्लीस के लिए जन्नत के दरवाजे बंद हो चुके थे, वो बारगाह इलाही से निकाल दिया गया था। मगर सबसे बड़ा अजाब ये न था। असल अजाब वो पछतावा था जो उसके अंदर जलता रहता था और कभी बुझता न था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी खता लाइल्मी से नहीं थी। हुक्म वाज़े था, हक रोशन था। नाकाम उसकी अकल नहीं, बल्कि उसका तकब्बुर हुआ था। जमाने गुजरते रहें, नस्लें बदलती रहीं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम आते रहें, तंबीह करते रहें, हिदायत देते रहें। जब इंसान तौबा करते तो माफ हो जाते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। इब्लीस ने कहा, तू अपने रब से अर्ज कीजिए कि उसकी एक मखलूक चाहती है कि उसकी तौबा कबूल कर ली जाए। उसने अपना नाम न लिया, मगर मकसद वाज़ेह था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वही का इंतजार किया और जवाब आया, ए मूसा, उससे कह दो कि मैं तेरी खातिर उसकी दरखास्त कबूल करता हूं, बशर्ते कि वो आदम की कब्र पर जाकर सजदा करे। ये रहमत का दरवाजा था, मगर साथ ही आखिरी आजमाइश भी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम इब्लीस को पहुंचाया, तो उसके अंदर का पुराना मर्ज फौरन जाग उठा। उसका चेहरा बदल गया, गुस्सा भड़क उठा, और उसने कहा, मैंने आदम को उस वक्त सजदा ना किया जब वो जिंदा थे, क्या अब उनके मरने के बाद सजदा करूंगा? इस जुमले ने वाज़ेह कर दिया कि उसकी तौबा सच्ची ना थी, क्योंकि सच्ची तौबा शर्त नहीं लगाती। सच्ची तौबा में अन्ना नहीं होती। मगर इब्लीस अब भी खुद को दुरुस्त समझता था। रिवायात के मुताबिक इस इनकार के बाद उसका अजाब और सख्त कर दिया गया। उससे पूछा गया, अल्लाह का अजाब कैसा पाता है? उसने जवाब दिया, हर तसव्वुर से बढ़कर भारी। फिर एक और पेशकश हुई, आदम जन्नत में जिंदा हैं, उनके पास जा, सजदा कर, माफी मांग, बख्श दिया जाएगा। मगर उसने फिर इनकार कर दिया। इस जिद ने उसके अजाब को और बढ़ा दिया। बाज रिवायात में आता है कि उसका अजाब जहन्नम में दूसरों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा कर दिया गया, और हर तवील अरसे के बाद उसे निकालकर आदम के सामने लाया जाता, सजदे का हुक्म दिया जाता। मगर हर बार वही तकब्बुर, वही इनकार, वही सुकूत। इब्लीस के लिए वापसी का दरवाजा बंद हो चुका था। वक्त गुजरता रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, और यहां से कहानी मजीद हौलनाक रुख इख्तियार करती है। रिवायात के मुताबिक उनकी वफात के बाद इब्लीस उनकी कब्र की तलाश में निकला, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे। और हमेशा की तरह इब्लीस ने फिर वही गलती की। उसने तकद्दुस को गलत जगह तलाश किया।
मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पोशीदा रखी गई। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का मकाम लोगों से मख्फी रखा, क्योंकि कब्रें इब्लीस के पसंदीदा जालों में से एक हैं। वो इन्हें सजदे से हटाने और तौहीद से दूर करने का निहायत बारीक जरिया बनाता है। इब्लीस इस राज को जानता था, इसीलिए वो तलाश में निकला, मगर नाकाम रहा। यहां एक दर्दनाक हकीकत सामने आती है। अगरचे वो तौबा का ख्वाहिशमंद दिखाई दिया, मगर जब तक उसने तौहीद को दिल से कबूल न किया, उसके लिए कोई दरवाजा न खुला। उसका मसला महज गुनाह न था। इस हिस्से का सबक वाज़ेह है। अल्लाह ताला की रहमत बेहद है, मगर तकब्बुर से बंद दिल उसके करीब भी नहीं पहुंच सकता। क्योंकि सजदा सिर्फ पेशानी जमीन पर रखने का नाम नहीं, बल्कि अपनी अना को मिट्टी में मिलाने का नाम है। जब आखिरी वक्त करीब आया और भागने की कोई राह बाकी न रही, तो पहली बार इब्लीस ने खुद को घिरा हुआ महसूस किया। सदियों तक वो इंसानों को बहलाता रहा, धोखा देता रहा, कहता रहा, अभी वक्त है, बाद में तौबा कर लेना, मौत दूर है। मगर अब वो खुद उस हकीकत के सामने था जिससे दूसरों को गाफिल करता रहा। इस बार उसका सामना इंसान से नहीं, बल्कि मुल्कुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से था। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि शैतान की रूह कब्ज करे। मौत का मतलब हिसाब था, और यही वो मरहला था जिससे वो सबसे ज्यादा खौफजदा था। इसलिए उसने आखिरी मर्तबा अपनी सारी चालें, फरेब और ताकत आजमाने की कोशिश की, ताकि इस गिरफ्त से बच निकले। ये कोई आम ताक़ुब न था, बल्कि ऐसा मंजर था जिसे जमीन और आसमान देख रहे थे। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम का ताक़ुब शुरू हुआ और शैतान जमीन पर ऐसी रफ्तार से भागा जिस तक हवा भी न पहुंच सके। मगर ताक़ुब कदम ब कदम जारी रहा। वो पहाड़ों की ढलवानों की तरफ दौड़ा जहां इंसानी कदम न पहुंचे थे, घिने जंगलात में छुपा, वीरान सहराओं में भटका, मगर हर बार हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की निगाह उस पर रही और फासला कम होता गया। जब उसे यकीन हो गया कि जमीन पर कोई पनाह बाकी नहीं, तो वो जमीन की तहों में उतर गया। अंधेरी और सर्द गहराइयों में चश्मे की कोशिश की, मगर जेरे जमीन की तारीकी भी उसे महफूज न रख सकी। जमीन कभी उसकी पनाह न बनी थी। वो मिट्टी को वैसे भी नापसंद करता था, क्योंकि उसे आदम अलैहिस्सलाम की याद दिलाती थी, और ताक़ुब बदस्तूर जारी था। मायूसी में वो दोबारा जमीन से निकला और आसमान की तरफ बुलंद होने लगा। बादलों में पनाह ढूंढी, मगर फजाओं की गहराइयों में भी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की मौजूदगी का एहसास उसके साथ रहा। हर बार जब वो छुपने की कोशिश करता, ताक़ुब उसके पीछे होता। आसमानों की ये सनसनी खेज दौड़ उसके खौफ को और बढ़ाती गई। जब कहीं भी ठिकाना न मिला, तो घबराकर फिर जमीन की तरफ लौटा। अब उसे सिमत का भी इल्म न रहा। दहशत में हर रुकावट को पार करता भागता रहा। उम्मीद टूटने ही वाली थी कि एक आखिरी ख्याल उसके जहन में आया। वो बारगाह रब्बुल आलमीन में हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, वो नजरों से ओझल हो गया है, अब क्या हुक्म है? इरशाद हुआ, जहन्नम की तरफ जाओ, उसके दारोगा हजरत मालिक अलैहिस्सलाम के पास जाओ और जहन्नम के 70,000 कुत्ते ले आओ। उनके जरिए शैतान को तलाश करो। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम 70,000 जहन्नमी कुत्तों को लेकर निकले। वो आग से पैदा किए गए थे। उनकी आंखों में दोजख के शोले दहक रहे थे, दांतों में मौत की ठंडक थी। वो बेरहम और निहायत दरिंदा सिफत मखलूक थे। उनके साथ ताक़ुब तेज हो गया, मगर हैरत ये कि 70,000 जहन्नमी कुत्ते भी शैतान का सुराग ना पा सके। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम दोबारा हुक्म लेने हाजिर हुए। फिर 70,000 मजीद जहन्नमी कुत्ते अता किए गए। तलाश जारी रही, मगर शैतान फिर भी गिरफ्त में ना आया। तीसरी बार हुक्म हुआ और मजीद 70,000 जहन्नमी कुत्ते दिए गए। अब ताक़ुब शदीद हो चुका था। जब शैतान ने पीछे से कुत्तों की गर्राहट और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की हैबतनाक मौजूदगी महसूस की, तो वो अंधाधुंध भागता रहा, यहां तक कि एक सुनसान और वीरान मकाम पर जा गिरा। वो जमीन का एक आम सा टुकड़ा दिखाई देता था। थकन से चोर होकर वो जमीन पर ढेर हो गया, ये समझते हुए कि अब दौड़ने का कोई फायदा नहीं। मगर हकीकत ये थी कि उस मकाम तक उसका पहुंचना इत्तेफाक न था।
उस सुनसान जमीन के नीचे एक राज छुपा था, एक ऐसी हकीकत जिससे वो बेखबर था। खामोशी और तारीकी में लेटा वो फरार की राहें सोच रहा था, मगर उसे मालूम न था कि वो किस मुकद्दस मकाम पर आ गिरा है। आसमान और जमीन इस लम्हे तकदीर के गवाह थे। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम करीब आए। शैतान समझ चुका था कि अब न ताकत बाकी है न पनाह। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आखिरी कदम बढ़ाया। शैतान खौफ से कांप रहा था, भागने की कुव्वत भी ना रही थी। फरिश्ता मौत ने कहा, ए मलून, जब अल्लाह ताला ने तुझे हुक्म दिया था तो तूने सजदा ना किया। क्या अब आदम को सजदा कर रहा है? शैतान ने घबरा कर कहा, नहीं, मैंने कब और कहां सजदा किया। इसी लम्हे हकीकत आश्कार हुई। जिस जमीन पर वो गिरा था वो हजरत हाँ, ये था शैतान का अंजाम। वो हस्ती जिसने अपनी पूरी जिंदगी आदम और उनकी औलाद की दुश्मनी में गुजारी, आखिरकार उसी जगह बेख्तियार झुककर खत्म हुई जहां उसने उम्र भर सजदा से इनकार किया था। सूरह अल बकरा आयत 34। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सवाए इब्लीस के। उसने इनकार किया, तकब्बुर किया और काफिरों में शामिल हो गया। सूरह सा आयत 52 से 83। इब्लीस ने कहा, तेरी इज्जत की कसम, मैं उन सबको जरूर बहकाऊंगा सवाए तेरे मुखलिस बंदों के। सूरह इब्राहिम आयत 22। और जब फैसला हो चुकेगा तो शैतान कहेगा, बेशक अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने भी तुमसे वादा किया, मगर मैंने खिलाफ किया। मेरा तुम पर कोई जोर ना था, मैंने तो सिर्फ तुम्हें बुलाया और तुमने मेरी बात मान ली। लिहाजा मुझे मलामत ना करो, खुद को मलामत करो। न मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और न तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं तो पहले ही इनकार कर चुका था कि तुम मुझे अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ। बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। और यूं मामला खत्म हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को इस अंजाम का मुशाहिदा कराया गया। ये इंतकाम न था बल्कि सबक था, क्योंकि अल्लाह ताला हकीकत दिखाना चाहते थे कि जो तकब्बुर को थामे रखता है वो बिलाखिर हार जाता है। जो सजदे से भागता है वो एक दिन मगलूब होकर रहता है। इब्लीस ने पूरी जिंदगी आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी में गुजारी, मगर उसकी आखिरी सांस आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर निकली। जिस सजदे से वो भागता रहा वही सजदा आखिरकार उस तक पहुंच गया। इस वाक़े में हमारे लिए पैगाम है कि शैतान चाहे कितना ही ताकतवर दिखाई दे, मौत के सामने बेबस है, और अदले इलाही कभी कभी खामोशी के जरिए सबसे भारी फैसला सुनाता है। अब दुनिया में शैतान का निजाम क्या है? जब से इब्लीस रांदा दरगाह हुआ, उसने एक ही हदफ मुकर्रर किया, इंसान को गुमराह करना। मगर कैसे? वो फरिश्तों की तरह कादिर नहीं। वो किसी को जबरदस्ती घसीट कर जहन्नम में नहीं ले जा सकता, न हाथ बांध सकता है, न जिस्मानी जब्र कर सकता है। उसका सबसे बड़ा हथियार वसवसा है, दिल में सरगोशी, एक छोटी सी आवाज, कर लो, आजमा लो, क्या हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के अंदर ऐसे गर्दिश करता है जैसे खून रगों में गर्दिश करता है। यानी वो दौर नहीं, करीब है, हर वक्त साथ है। मौके की क्या खौफनाक हकीकत है। सिर्फ खाने में नहीं, घर में दाखिल होते वक्त, बाहर निकलते वक्त, किसी भी काम की इब्तिदा पर बिस्मिल्लाह कहना शैतान को दूर रखता है। अगर इंसान गाफिल हो जाए तो वो फौरन शरीक हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपने घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह को याद करता है तो शैतान कहता है, यहां तुम्हारे लिए न ठिकाना है न खाना। और अगर वो अल्लाह को याद किए बगैर दाखिल हो तो शैतान कहता है, तुम्हें ठिकाना मिल लिया। और अगर खाते वक्त भी अल्लाह को याद ना करे तो कहता है, तुम्हें ठिकाना भी मिल गया और खाना भी। बिस्मिल्लाह एक ढाल की तरह है, जब ये ढाल मौजूद हो तो इब्लीस दाखिल नहीं हो सकता। इसी गुफ्तगू में इब्लीस ने कहा, ऐ मोहम्मद, क्या आप जानते हैं कि मुझे लोगों में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ। उसने कहा, जो झूठ बोलता है वो मेरा दोस्त है।
क्योंकि तारीख में सबसे पहला झूठ मैंने बोला और आदम और हव्वा के सामने झूठी कसम मैंने खाई। झूठ उन कामों में से है जिन्हें इब्लीस सबसे ज्यादा पसंद करता है। फिर उसने कहा, और जानते हैं मुझे सबसे ज्यादा किससे नफरत है? उस नौजवान से जो अपनी जवानी अल्लाह की राह में लगा दे, क्योंकि वो मुझसे दूर होता है। इब्लीस खास तौर पर ऐसे नौजवानों का दुश्मन है जो ताकत, तवानाई और जोश के जमाने में अल्लाह के करीब रहते हैं, क्योंकि यही उम्र सबसे मुअस्सिर होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, और किससे नफरत है? उसने कहा, मुझे उस गरीब से नफरत है जो सब्र करता है और लोगों से अपनी हाजत का शिकवा नहीं करता, क्योंकि वो शुक्रगुजार होता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है। मैं उसे आसानी से नहीं बहका सकता। फिर पूछा गया, और किससे? उसने जवाब दिया, मुझे उस मालदार से नफरत है जो शुक्र अदा करता है, क्योंकि दौलत के बावजूद शुक्रगुजार रहना बहुत मुश्किल है, और जो उसमें कामयाब हो जाए मैं उस पर असर नहीं डाल सकता। शैतान को बाज मकामात बहुत पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान को सबसे ज्यादा महबूब जगहें बाजार हैं, क्योंकि वहां झूठ, धोखा, सूद और फरेब आम होते हैं। इसी तरह शराब खाने, जवा खेलने की जगहें और बेहयाई के अड्डे वो मकामात हैं जहां इब्लीस खुद को मजबूत महसूस करता है, क्योंकि वहां गुनाह पहले से मौजूद होता है और वो सिर्फ उसे हवा देता है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां शैतान सबसे ज्यादा कमजोर, ऐसे घरों से शैतान भाग जाता है। कुरान मजीद में शैतान का तारुफ यूं कराया गया है, वो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, खा जिनों में से हो या इंसानों में से। वो दिल में सरगोशी करता है, ख्याल में दाखिल होता है और आहिस्ता आहिस्ता काम करता है। पहले एक छोटा सा शक डालता है, ये गुनाह आखिर है क्यों? किसी को क्या नुकसान होगा? फिर उसे बढ़ाता है, क्या ये बात अजीब नहीं लगती? फिर दलाइल तराशता है, दुनिया में इतना जुल्म है, अगर अल्लाह है तो ये सब क्यों है? और फिर नतीजा निकालता है, शायद दीन इंसानों की बनाई हुई चीज है। ये अमल खामोशी से कदम ब कदम आगे बढ़ता है और अक्सर इंसान को एहसास भी नहीं होता, मगर इसका तोड़ भी मौजूद है, जिक्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के दिल पर गिरा लगाता है और उसे अल्लाह से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब बंदा अल्लाह को याद करता है तो वो गिरा खुल जाती है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलिमात दिल की गिरहें खोल देते हैं। नमाज में शैतान क्या करता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आजान दी जाती है तो शैतान पीठ फेर कर भागता है, यहां तक कि हवा खारिज करता है। जब आजान खत्म हो जाती है तो वापस आ जाता है। जब इकामत कही जाती है तो फिर भागता है, और जब इकामत खत्म होती है तो आकर नमाजी के दिल में ख्यालात डालता है, ये याद कर, वो याद कर, यहां तक कि नमाजी भूल जाता है कि कितनी रकतें पड़ी हैं। क्या कभी नमाज में ख्यालात बिखर जाते हैं? आज क्या पकाना है? वो काम मुकम्मल हुआ या नहीं? कल क्या करना है? ये वसवसे शैतान की कारिस्तानी है। इसका इलाज क्या है? इस्तिआज़ा पढ़ना, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं मरदूद शैतान से। ये जुमला शैतान को दूर कर देता है। रात को वुजू करके सोना भी बड़ी हिफाजत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वुजू की हालत में सोता है, शैतान सुबह तक उसके करीब नहीं आता। लेकिन बगैर वुजू सोए तो शैतान ख्वाबों और डरावने मनाजिर के जरिए असरअंदाज हो सकता है। इसी तरह सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ना इंतहाई अहम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह ताला उस पर सुबह तक एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर कर देता है और शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। एक शख्स ने आकर नसीहत मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा न करो। उसने दोबारा पूछा, फिर भी फरमाया, गुस्सा न करो, क्योंकि गुस्सा वो कैफियत है जिसे शैतान सबसे ज्यादा पसंद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा शैतान की तरफ से है और शैतान आग से पैदा किया गया है और आग पानी से बुझती है। लिहाजा जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वुजू कर ले। जब गुस्सा आए तो अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, वुजू करो, इस्तिआज़ा पढ़ो, खामोश रहो और इंतजार करो। तलाक़ें, लड़ाइयां, कत्ल, अक्सर उन सब की जड़ गुस्सा होता है और शैतान इसी से फायदा उठाता है। वसवसा और ईमान का ताल्लुक भी समझ लीजिए।
بعض اوقات ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ انسان انہیں زبان پر لانے سے بھی شرماتا ہے، جیسے کیا واقعی اللہ موجود ہے، یا کیا انبیاء سچے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر ہم انہیں بیان کریں تو جل کر راکھ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، الحمدللہ کہ اللہ نے شیطان کی چال کو وسوسے تک محدود کر دیا۔ یعنی وسوسہ آنا ایمان کی علامت ہے، کیونکہ شیطان وسوسہ انہیں دیتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ جو پہلے ہی انکار کر چکے ہوں ان پر وسوسہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ مانگو اور ان خیالات کو چھوڑ دو، یعنی سوچ کو وہیں کاٹ دو، آگے نہ بڑھاؤ۔ شیطان کا طریقہ یہی ہے، آہستہ، خاموشی سے، صبر کے ساتھ قدم بقدم بہکانا۔ مگر حفاظت کے دروازے بھی کھلے ہیں، شرط یہ ہے کہ انسان بیدار رہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان راستوں کو سیکھیں جو ہمیں شیطان سے بچاتے ہیں۔ ابلیس طاقتور ضرور ہے، مگر بے حد نہیں۔ اسے اتنی ہی قدرت حاصل ہے جتنی اللہ تعالیٰ چاہیں، اور اللہ نے ہمیں اس کے مقابلے کے لیے ہتھیار عطا کیے ہیں، ڈھالیں دی ہیں، حفاظتی ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، رات کو کوئی آ کر میرے صدقے میں سے چوری کر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے پکڑ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، کوشش کروں گا۔ اس رات وہ گھات لگا کر بیٹھے اور چور کو پکڑ لیا۔ اس شخص نے گڑ گڑا کر کہا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ صحابی کو رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو فرمایا، وہ تم سے جھوٹ بول گیا، وہ پھر آئے گا۔ دوسری رات بھی یہی ہوا، اور تیسری رات جب اسے پکڑا گیا تو صحابی نے کہا، اس بار تمہیں ضرور رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک قیمتی بات سکھاتا ہوں۔ پوچھا گیا، کیا؟ اس نے کہا، ہر رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تم پر صبح تک ایک فرشتہ مقرر کر دے گا اور شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ صبح جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ مسکرائے اور فرمایا، اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ وہ کون تھا؟ شیطان۔ جی ہاں، خود ابلیس بھی آیت الکرسی کی طاقت کو تسلیم کرتا ہے۔ اسے کب پڑھیں؟ فجر کے بعد پڑھیں تو دن بھر حفاظت، مغرب کے بعد پڑھیں تو رات بھر حفاظت، سونے سے پہلے پڑھیں تو نیند میں حفاظت، گھر سے نکلتے وقت پڑھیں تو باہر حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اس کے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت مانے ہیں، یعنی اس کا انجام جنت ہے۔ دوسرا ہتھیار، بسم اللہ۔ ایک مختصر جملہ مگر ابلیس کے لیے آگ کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ برکت سے خالی ہوتا ہے، یعنی اس میں خیر کم ہو جاتی ہے اور شیطان مداخلت کرتا ہے۔ بسم اللہ کب کہیں؟ گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، کھانا شروع کرتے وقت، پانی پیتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، وضو کرتے وقت، سفر شروع کرتے وقت، گاڑی میں بیٹھتے وقت، حتیٰ کہ میاں بیوی کے تعلق کے وقت بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس جائے اور کہے، بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، پھر اگر اس ملاپ سے بچہ بسم اللہ زندگی کے ہر مرحلے میں ڈھال ہے۔ تیسرا اور سب سے طاقتور ہتھیار، ذکر۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کے نام کو دہرانا۔ آسان ترین اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی کہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ جو دل ذکر سے زندہ ہو جائے، اس پر شیطان کا وار کمزور پڑ جاتا ہے۔ ذکر وہ نور ہے جس کے ہوتے ہوئے وسوسے کی تاریکی ٹک نہیں سکتی۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के दिल से चिमटा रहता है। जब बंदा अल्लाह को याद करता है तो वो पीछे हट जाता है, और जब बंदा गाफिल हो जाता है तो शैतान उसके दिल पर काबिज हो जाता है। इसलिए अपने दिल को खाली मत छोड़ो, उसे जिक्र इलाही से आबाद रखो। सुबह शाम के अस्कार को लाजिम कर लो। सुबह 3 मर्तबा पढ़ो, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामात मिन शर्रि मा खलक, यानी मैं अल्लाह के कामिल कलिमात की पनाह मांगता हूं उसकी मखलूक के शर से। सुबह शाम 3 मर्तबा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, यानी उस अल्लाह के नाम से जिसके नाम के साथ जमीन और आसमान की कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वो खूब सुनने वाला, जानने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स उसे सुबह 3 मर्तबा पढ़े उसे शाम तक कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और जो शाम को 3 मर्तबा पढ़े उसे सुबह तक कोई नुकसान नहीं पहुंचता। कुरान वो नूर है जिससे शैतान भागता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाए वहां से शैतान भाग जाता है। खास तौर पर सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात, आमनर रसूल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ ले वो उसके लिए काफी हो जाती हैं, यानी उस रात हिफाजत मिल जाती है। इसी तरह सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास को सोने से पहले पढ़ना और हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर फेरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। दुआ सबसे मजबूत हिस्सा, उसे सुबह शाम पढ़ो, शैतान दूर रहेगा। इखलास वो मकाम है जहां शैतान की रसाई खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं। इखलास क्या है? हर अमल सिर्फ अल्लाह के लिए करना, न दिखावे के लिए, न लोगों की तारीफ के लिए, बल्कि सिर्फ उसकी रजा के लिए। जहां इखलास हो वहां शैतान का दाखला बंद हो जाता है। सब्र और तवक्कुल भी ढाल है। इब्लीस की सबसे बड़ी चाल मायूसी है। वो कहता है, तेरा गुनाह बहुत बड़ा है, तू खत्म हो चुका है, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, अब तू जहन्नुम वालों में से है, गुनाह करता रह। मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ कर देता है। गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, दरवाज़ा तौबा खुला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, उसके हर हाल में खैर है। अगर खुशी मिले तो शुक्र करता है, वो उसके लिए बेहतर है, और अगर तकलीफ आए तो सब्र करता है, वो भी उसके लिए बेहतर है। इब्लीस चालाक है, मगर अल्लाह उससे ज्यादा कादिर है। इब्लीस करीब है, मगर अल्लाह ताला उससे भी ज्यादा करीब है। कुरान में इरशाद है, हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं जो उसका नफ्स वसवसा डालता है, और हम उसकी शहरक से भी ज्यादा करीब हैं। अगर शैतान रगों में दौड़ता है तो याद रखो, अल्लाह ताला उससे भी ज्यादा करीब है। बस उसकी पनाह मांगो, जिक्र करो, दुआ करो, नमाज कायम रखो, कुरान पढ़ो, बिस्मिल्लाह कहो, इस्तिआज़ा पढ़ो, और यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। इब्लीस का अंजाम वाज़े है, जहन्नम। तुम्हारा अंजाम भी वाज़े हो सकता है, जन्नत। फैसला तुम्हारे हाथ में है। इंसान अल्लाह की खास तख्लीक है। हम फरिश्तों और हैवानों के दरमियान पैदा किए गए हैं। चाहें तो फरिश्तों से बुलंद हो जाएं, और अगर शैतान के पीछे चलें तो हैवानों से भी नीचे गिर जाएं। इंतखाब हमारा है। जैसा कि अहले इल्म ने कहा, कभी फरिश्ते इंसान के हाल पर रश करते हैं और कभी शैतान भी इंसान के जवाल पर हैरान रह जाता है।